is visible and am I audible to you also? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, So let's ma'am. start our lecture without wasting any more time. So I hope basics of ER diagram are clear to you. Entities, relationship, entity sets, relationship set, all things are clear to you. So in today's lecture, we will be discussing about enhanced notations of ER diagram and relational data models. So basically, we deal with relational data models. Whenever we are talking about designing a DBMS or RDBMS, it means we are talking about designing a relational tables. So fine. So that is a relational data model. Whenever we are talking about tables and their relationships and primary keys and all, and when we are talking about the diagrammatical representation of something, that is your ER diagrams. So agenda of today's lecture is to discuss about enhanced ER diagrams. That is the generalization, specialization, and aggregation will be there. Then we will be doing comparison of different models. That is again important from 10 marks point of view. That is comparison of models. Then ER to relational mapping. That is how we can design a relational model from your ER model. So let's start with enhanced features of ER diagram. So the first enhanced feature of ER diagram is subclass and superclass. They are similar to your object-oriented programming, because whenever we are talking about ER diagrams, it means we are talking about object-oriented data models. Fine. So what is a superclass? Anybody having any idea? Any student? In from object oriented programming point of view, what is superclass? मैम जो मेन क्लास मैम होती मे बी जो पेरेंट क्लास होता है ओके या एग्जैक्टली जो हमारी मेन पेरेंट क्लास मैम होती है आपकी उसको आवाज हम नहीं आ रही है। इज द ऑडिबिलिटी प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू और ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स? मैम नो आवाज मैम आ रही यू है। आर ऑडिबल तो सभी को प्रॉब्लम आ रही है मेरे नेटवर्क की? नो नो मैम। मैम। मैम तो राइट इन द चैट बॉक्स, हरी अप. How many of you are facing the problem and who are not facing, please write. Am I audible? यस मैम अब ठीक है। यस मैम ऑडिबल ऑडिबल। So few students are saying not audible. It means maybe the problem is from their end, but many of them are saying I am audible. So let's see for what happens. So whenever we are talking about a superclass or subclass, it means we are talking about the same terminology that was there in object-oriented programming paradigm. Fine. So superclass is the main class. We can call a parent class as the superclass. So superclass क्या होती है? कोई भी हमारे पास entity जो further subparts में divide हो सके. Fine. और superclass हमारे पास क्या होती है? In this case we are consider कि हमारी एक superclass है shape, और शेप की फर्दर टाइप्स है ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल. तो इसमें क्या होता है, वही कॉल कि सुपर क्लास जो शेप है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी. बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट अनम्यूट until and unless it is required. किसी की बैकएंड से मुझे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. ठीक है. तो इस क्लास में हम शेप क्लास हमारी सुपर क्लास है. और इफ वी टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो हमारे पास कौन सी होती है? ट्रायंगल इज देयर, स्क्वायर इज देयर, सर्कल इज देयर. तो इन दिस केस वी कैन से कि शेप इज अ सुपर क्लास and these three are a subclasses. So this is a terminology that may be needed somewhere in your requirement. Now suppose we are talking about our own college, then we say GGI will be the superclass, and if we talk about GIT, GCE, GSM, they will be the subclasses. तो अगर इस टाइप की notation हो, then we can use superclass and subclass concept. Similarly, if we say we are talking about departments, and what happens in departments? So department is the superclass, and CSE, mechanical, EC, whatever the departments are there, they will be the subclasses. So next we have another important feature, specialization and generalization. So whenever we are talking about specialization and generalization, they are just the change in the order. Means
इनमें से एक टर्मिनोलॉजी में वी टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम अप्रोच, इन अदर टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट बॉटम अप अप्रोच, मींस फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टॉप. नाउ अगर मैं ये बोलूं कि जीजीआई के अंडर कौन कौन से कॉलेज है, सो वी कैन से जीजीआई इज इंजीनियरिंग कॉलेज, जीजीआई इज सपोज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, देन जीजीआई इज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज. तो वो क्या आ गया आपके पास, इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप. रिवर्स में आप क्या बोल सकते हो कि जीआईटी और जो भी आपका है दैट इज पार्ट ऑफ जीजीआई, GSM is part of GGI and so on. Similarly, in this case, what is happening? वही से vehicle एक क्लास है. अब vehicle के अंडर कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज नोन एज जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन. सो जनरलाइजेशन क्या होगी, इज अ प्रोसेस of generalizing an entity which contains generalized attributes or properties of जनरलाइज्ड एंटिटीज. ठीक है, और जनरलाइजेशन आपका क्या होता है, बॉटम अप. अगर मैं सपोज मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सीएससी, मैकेनिकल, ईसीई, ट्रिपल ई लाइक वाइज, तो एट एंड में किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम इंजीनियरिंग ब्रांचेस. तो अगर मैं एक एक ब्रांच का नाम ना लेना चाहूँ, बट कैन आई से, आई कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग ओनली. तो इट मीन्स उसकी सारी ब्रांचेस, एक जनरल डेफिनेशन दे दी आपने किसी चीज की. Suppose you are talking about car, truck, motorcycle and all, then it means you are talking about vehicle category. Now suppose you are talking about certain other things, geometrical shapes you are talking about. Suppose we are saying circle, then triangle, square, rectangle, whatever is there. Then we say कि हम किस चीज की बात करें, we are talking about shapes. तो आप एक उसके जनरलाइज डेफिनेशन दे सकते हो, दैट इज नोन एज शेप. तो सिमिलरली अगर उसका रिवर्स आप रीड करते हो, नाउ सपोज आई एम सेइंग कि मुझे इंजीनियरिंग की डिटेल्स चाहिए, देन यू विल बी गिविंग मी डिटेल्स अबाउट सीएससी, मैकेनिकल, ईसी. तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी स्पेशल कैटेगरी में जा रहे हो, किसी चीज की आप स्पेशलाइजेशन बता रहे हो, तो इट मीन्स दैट इज स्पेशलाइजेशन. सो अगर आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हो, मीन्स सब पार्ट से एक कॉमन पार्ट पे जा रहे हो, दैट इज जनरलाइजेशन. अगर आप किसी की स्पेशल characteristics बता रहे हो, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स specialization. So these are the factors of generalization and specialization. Now in ER diagram, if you want to represent generalization and specialization, तो आप एक ये triangular box use करोगे और इसमें relationship लिखोगे is a. This is a type of relationship. So specialization and generalization are is a type of relationship. So what is the definition of specialization here? So we say it is a process of identifying subsets of an entity that shares some different characteristics. It is a top-down approach in which one entity is broken into low-level entities. Then we have aggregations. Now suppose if we talk about your aggregation marks, तो आप मुझे क्या बताओगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बीटेक की क्या परसेंटेज जा रही है, then you will give aggregate of some all the semesters. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास किसी चीज का जैसे हम बोले लमसम सा आंसर देना है, देन वी टॉक अबाउट एग्रीगेशन इन दैट केस. नाउ इस केस में एग्रीगेशन बेसिकली हम ईयर डायग्राम में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ईयर डायग्राम है वो कम्प्लेक्स हो सकता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए उसको उसमें हम एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं. नाउ सपोज इस केस में हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. व्हाट इज हैपनिंग कि अगर एक जॉब एंटिटी है, तो वो जॉब एंटिटी जो है उसको कोई मैनेजर मैनेज करेगा. ठीक है, ऑब्वियसली मैनेजर भी तो जॉब ही कर रहा है ना, सो मैनेजर मैनेजेस जॉब. तो एक तो ये रिलेशनशिप आ गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, कोई एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय को भी मैनेजर हैंडल करेगा बिकॉज द एम्प्लॉयज आर अंडर मैनेजर्स. ठीक है, सो दिस विल बी वन मोर रिलेशन. अब एम्प्लॉय है वो किसी ब्रांच पे वर्क करेगा, सो देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच सेज एम्प्लॉय वर्क्स ऑन this branch, the employee works in this branch. Similarly employee किसी job के लिए work कर रहा है, so we say employee works on this job. तो हमारे पास ये relationship जो है यहाँ पे बहुत सी association lines या links आ रही है. इसको आप सिंपलाइज कैसे कर सकते हो कि आप अब जो रिलेशनशिप है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो जिसके मैक्सिमम रिलेशंस हैं.
ठीक है। अगर हमारे पास इस कैटेगरी को देखो, जॉब की कैटेगरी की ब्रांच को, तो इसको अगर हम एक बॉक्स में डाल दें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करोगे, उसके अंदर सारी एंटिटीज को आप प्लेस कर दोगे, क्योंकि अब उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जितनी भी एंटिटीज है, सपोज यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, ठीक है, तो इसके पास जो भी एंटिटीज है उनमें से बाहर आपने एक ही लाइन लगाई जो और सारी एंटिटी से आपको रिलेट कर देगी। तो उस केस में व्हाट इज हैपनिंग, मेरा डायग्राम बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सी एसोसिएशन लाइन जिसमें से रिड्यूस हो जाएंगी। सो हियर वी से we are considering a ternary relationship, work on it a ternary, क्योंकि इसमें से मल्टीपल रिलेशनशिप है। कैसे है ये टर्नरी, क्योंकि इसका रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के साथ, ब्रांच के साथ एंड मैनेजर के साथ। तो इट मींस दिस वर्क्स ऑन रिलेशनशिप इज रिलेटेड विद थ्री डिफरेंट एंटिटीज, वन एंटिटी, सेकंड एंटिटी एंड थर्ड एंटिटी। सो दिस इज अ टर्नरी रिलेशनशिप। अब इसी का एक रिलेशनशिप किसके साथ है, एक और रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि जो हम डायमंड बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज रिलेशनशिप, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है दैट इज नोन एज एंटिटी सेट। तो इन दिस केस हुई से जो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है, ये आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आगे फर्दर मल्टीपल एंटिटीज को रिलेट कर रहा है। इन अवर केस हमारे पास क्या है, ये टर्नरी है, ठीक है। सो इसमें बेस्ट वे क्या होगा इस मॉडल को डिजाइन करने का, वी यूज एग्रीगेशन। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका रिलेशनशिप सेट है ये वर्क्स ऑन, ये एक हायर लेवल एंटिटी सेट बन जाएगा, जिसमें ये तीनों चीजें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ गई, ठीक है, और जो मैनेजर्स है ये आपका बाहर आ जाएगा उस बॉक्स के और आपको मैनेजर से रिलेट कर देगा। इसका मैं आपको ड्रॉ करके पेन पेपर पे डायग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो इसका सिंपलाइज डायग्राम बनेगा, ठीक है। So this is a full-fledged example of hospital management system, ER diagram। इसमें हमारे पास जनरलाइजेशन भी है, स्पेशलाइजेशन भी है, वीक एंटिटीज भी हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज भी हैं, और मल्टीपल टाइप के रिलेशनशिप्स भी हैं। नाउ इन दिस केस हुई से हमारे पास एक एंटिटी है पेशेंट। इस पेशेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, पेशेंट आईडी, नेम, उसका जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, उसके कौन सी डेट को वो एडमिट हुआ था, ये देखो एट्रीब्यूट के आगे एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। जो पेशेंट की डिटेल्स हैं, इसके फर्दर क्या पार्ट्स हो सकते हैं, किस डेट को वो एडमिट हुआ, किस डेट को वो डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट के फर्दर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं ना। और पेशेंट के कॉन्टेक्ट नंबर, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग टू डबल डैश्ड लाइंस। व्हाट डज इट मीन बाय डबल डैश्ड लाइंस, it means this type of attribute is having multiple values. Now it says that one patient can have more than one contact number also, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एंटिटी है डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अटेंड्स पेशेंट, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। अब डॉक्टर जो आपका है, अब डॉक्टर के पास क्या, उसके फर्दर कैटेगरीज हो सकती है, मे बी वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल का परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, वो सैलरी बेस पे है, वो परमानेंट एम्प्लॉय है। एक होगा विजिटिंग है, क्योंकि सम हॉस्पिटल्स में वी कैन सी कि वहां पे मेंशन्ड होता है कि ये डॉक्टर कहीं और जॉब करता है, बट वो हमारा एक विजिटिंग डॉक्टर है, विजिटिंग स्टाफ मेंबर है, जो दिस स्पेशल पर्टिकुलर फिक्स डेज को ही विजिट करेगा। जो परमानेंट है वो उस हॉस्पिटल के लिए परमानेंट है, मींस आपको 24/7 जब व्हाटएवर द टाइमिंग इज उस टाइम पे अवेलेबल है। विजिटिंग में आ गया कि जो वो कभी कभी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, आपको उनके डेज बता दिए जाते हैं। एक हो गया ट्रेनीज। अब जो इंटर्नशिप करते हैं वो भी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहे हो सकते हैं। तो डॉक्टर की फर्दर स्पेशलाइजेशन क्या आ गई, डॉक्टर में भी ट्रेनी, डॉक्टर में भी विजिटिंग, डॉक्टर में भी परमानेंट। सो इस टाइप का जो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, ये क्या है, स्पेशलाइजेशन। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से डायरेक्शन में रीड करोगे कि चाहे वो विजिटिंग डॉक्टर है, चाहे वो ट्रेनी है, चाहे वो परमानेंट है, बट वो है क्या, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिसेप्शनिस्ट एंटिटी। अब रिसेप्शनिस्ट एंटिटी में क्या आ गया, अब जो रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, ये फर्दर रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि मे बी कोई अभी स्टार्टिंग है, कोई फ्रेशर है, उसको आपने रिसेप्शनिस्ट हायर कर लिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इट इज पॉसिबल कि एक पर्सन मल्टीपल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिलेशन लगा दिया, यू कैन स्किप दिस रिलेशन ऑल्सो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल के यही वाले रिलेशन होंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी देयर,
ठीक है। अब जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। सो रिसेप्शनिस्ट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अगर यहाँ पे 3 लाइंस हैं, इसका क्या मीनिंग है, मल्टीपल। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे सिंगल एरो लगा देते, यहाँ पे सिंपल लाइन लगा देते, दैट वाज आल्सो ओके। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये लाइंस 3 लाइंस लगा रहे हो, इसका भी सेम मीनिंग आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे n भी लिख सकते थे, दैट रिप्रेजेंट 1 to many टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है। सो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड की क्या एट्रीब्यूट्स आ गए, अपॉइंटमेंट कब, अपॉइंटमेंट कौन सी, अपॉइंटमेंट कौन से पेशेंट आईडी की है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या उसका रिकॉर्ड नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होगा वो एम्प्लॉय रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय एक नर्स भी हो सकती है, वो एम्प्लॉय एक डॉक्टर भी हो सकता है। अब डॉक्टर की फर्दर कैटेगरीज भी हो सकती है। सो वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और आपके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट लगती है, यू विल बी डिजाइनिंग द ईयर डायग्राम अकॉर्डिंगली। फाइन। अब इस केस में हमारे पास अगेन 2 एट्रीब्यूट्स आ गए, कॉन्टेक्ट नंबर, तो वो आपके पास आ गया, अगेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया। अब नाउ जो नर्स है, यहाँ पे वी हैव सीन कि जो नर्स है ये एक वीक एंटिटी है। व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ वीक एंटिटी ओवर हियर, वी से कि जो रूम्स हैं इनको कोई नर्स गवर्न करती है, क्योंकि नर्सेस की ड्यूटीज क्या होती है बेसिकली, जहाँ फ्लोर वाइज जहाँ उन पे मेंशन होता है कि इस पर्टिकुलर वार्ड को या इस पर्टिकुलर प्राइवेट रूम को, वट एवर टाइप ऑफ रूम इज देयर, उसके लिए कोई पर्टिकुलर नर्स असाइंड है। तो जो नर्स की एग्जिस्टेंस यहाँ पे है, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस विद रिलेटेड टू रूम है, कि कौन से रूम की कौन सी नर्स है। सो हियर वी आर कंसीडरिंग नर्स एज अ वीक एंटिटी। अगेन नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपको लगता है कि आपने नर्स को एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाना है, यू कैन यूज इट, नो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, बट इन दिस केस वी हैव कंसीडर्ड वीक एंटिटी। और मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहाँ पे इसको वीक एंटिटी हमने क्यों लिया है। तो अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी या किसी को वीक एंटिटी ले रहे हो, जस्ट लाइक अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कौन सी एंटिटीज हैं, क्या रिलेशनशिप है, ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लेक्चर। अब उस केस में जब आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आप यही टर्म्स को नीचे की पॉइंट्स बना के नोट डाउन कर दोगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रूम्स, तो रूम के पर्टिकुलर रूम आईडीज एंड रूम टाइप्स होंगी। ठीक है। सिमिलरली मेडिसिन, मेडिसिन की प्राइस, मेडिसिन की क्वांटिटी, मेडिसिन का कोई कोड हो सकता है। अब जो मेडिसिन है वो किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए होगी। मेडिसिन फ्रीक्वेंटली ये नहीं है कि किसी को भी दे दो, तो जो मेडिसिन होएगी वो किसी ट्रीटमेंट के लिए होगी। तो इस केस में वी आर सेइंग कि जो ट्रीटमेंट है ये वीक एंटिटी है। अब ये वीक किस टर्मिनोलॉजी में, ट्रीटमेंट जो है वो आपका मेडिसिन से भी रिलेटेड है, क्योंकि ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बिल बनेगा, उस बिल में क्या इंक्लूड हो जाएगा, आपकी मेडिसिन। अब जो ट्रीटमेंट है वो किसका है, उसके बिल किसके लिए बनेगा, ऑब्वियसली पेशेंट के लिए बनेगा। तो वो जो रिलेशनशिप है इस केस में भी आपके पास यू कैन से डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है। अब इस केस में दिस इज ऑल्सो नोन एज is it partial dependency और total dependency? Can anyone tell me, patient और treatment के बीच में जो dependency है, is it partial और total? हमने कल डिस्कस करी थी। टोटल। जो डबल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन? हाँ जी, टोटल वाली साइड पे we use double lines basically। ठीक है। Now see one more example। टोटल मैम। हाँ जी, टोटल। यस एग्जैक्टली। अब ये भी जो एग्जांपल है ये अगेन एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एग्जांपल है। ठीक है। अब देखो दिस वन वाज आल्सो ईयर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दिस इज आल्सो ईयर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मैम वो जो पीछे वाला था मैम, उसमें डैश्ड इलिप्स और जो थिक लाइन इलिप्स है उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे पेशेंट का है कॉन्टैक्ट नंबर। इसका रीजन ये है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये मल्टीपल है तो इसलिए डबल लाइंस आ गई। ठीक है। और इसको डैश्ड लाइन लिया हुआ है, ये एक डिस्क्रिमिनेटर की तरह भी यूज कर सकती हो, क्योंकि जनरली अगर मैंने किसी पेशेंट को, आपने सपोज हॉस्पिटल में बुलाना है ट्रीटमेंट देने के लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर तो वो सामने बैठा है तो आप उसको कॉल कर लोगे पेशेंट आईडी से, फाइन। अगर वो सामने नहीं है तो उस टाइम पे क्या करोगे, यू हैव टू कॉल दैट पेशेंट थ्रू हिज और हर कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो आपके पास एक डिस्क्रिमिनेटर के लिए भी यूज हो सकता है। सो यू कैन डू वन थिंग, चाहे इसको मल्टी वैल्यूड लगा के यहाँ पे डैश लाइन लगा दो,
चाहे आप इसको जो डबल एक्लिप्स लगा रहे हो इसको डैश कर दो, ठीक है। सो यू हैव टू ऑप्शन, यू कैन गो विद एनी ऑफ दिस। So next, this is again hospital management. This is easier as compared to previous one. इसमें उसने क्या यूज किया, 1 to n यूज कर लिया, मीन्स 1 to many टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंपली क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर की उसने क्या नहीं बनाई, आगे फर्दर कैटेगरीज नहीं बनाई कि डॉक्टर की टाइप्स कौन सी हैं, परमानेंट है, हाँ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन नहीं करी है, ठीक है। प्लस इसमें नर्सेज एंटिटी स्किप है। तो इट्स अप टू यू, लॉजिकली जिसने ये डायग्राम बनाई होगी उसने क्या किया होगा, उसके माइंड में ये वाले चल रहा होगा, जिस किसी ने ये वाली बनाई होगी तो ये क्या होगा, ये हमारा रियल वर्ल्ड से ज्यादा मैच करेगा। मींस अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस बना रहे हो तो ऑब्वियसली ये एंटिटीज आएंगी ही आएंगी, इससे भी ज्यादा आ सकती है अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो मैंने ये दो डिफरेंट इसलिए रखी थी कि n नंबर ऑफ फेयर डायग्राम्स आर पॉसिबल। आपके पास नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर, जो आपके माइंड में आ रहा है यू डिजाइन दैट। जस्ट अगर आपको नोटेशंस पता है, आप लॉजिकली रियल लाइफ से उसको रिलेट करके जिस टाइप का भी डायग्राम यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ, नो प्रॉब्लम इन दैट, फाइन। अगर सिमिलरली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यू विल गेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर डायग्राम्स, ठीक है। So next let us discuss about relational model. What is a relational model? Anybody having any idea? Yes. मैम जैसे जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उसमें जो कट लाइन थी उसका मतलब क्या था? कहाँ पे? इससे पिछले वाले में डायग्राम में मैम, किस जैसे diagram में? पेशेंट और डॉक्टर या पेशेंट और रूम में जो हमने कनेक्ट किया हुआ, लेकिन जो लाइन के बीच में हमने कट यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है? दिस लाइन, ये Yes, हमने देखो ये रिप्रेजेंट करी, मैंने आपको बताई थी कि जब आप वन टू मैनी, मैनी टू मैनी या कुछ टाइप का रिलेशनशिप डिफाइन करते हो, आप सिंपल डायरेक्टर लाइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आपके पास आई एज ए टाइप का रिलेशनशिप है, इज जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, उसमें देखो कहीं पे भी आपको कट नहीं आएंगे, सिंपल डायरेक्टर लाइंस होंगी। बट अगर आप रिलेशनशिप अटेंड्स के थ्रू कर रहे हो, मींस आप सॉरी रिलेशनशिप टाइप डिफाइन कर रहे हो, रिलेशनशिप सेट डिफाइन कर रहे हो, तो दिस रिप्रेजेंट्स कार्डिनैलिटी, क्योंकि इज ए तो अपने आप से कार्डिनैलिटी है ना, जनरलाइजेशन है। अब अगर जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन तभी करोगे ना अगर एक के ज्यादा पार्ट होंगे, तो सेल्फ रिप्रेजेंटरी है कि अगर जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन है तो ऑब्वियसली 1 to many है। बट अगर आपके पास सिंपल एंटिटीज हैं, सिंपल एंटिटीज में 1 to 1, मैनी टू मैनी, 1 to many, मैनी टू 1 कोई भी हो सकता है। तो उस केस में अगर आप ये यूज कर रहे हो तो वो मैनी आ गया। अगर आप कहीं पे ये वाली लाइन लगा सकते हो तो यू कैन सिंपली से 1 to 1 टाइप का, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास किसी टाइप का रिलेशनशिप है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गई, आप यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे भी 1 लिख दो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ गई, यहाँ पे डायरेक्शनल एरो लगा दो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। सो मल्टीपल नोटेशंस आर देयर, 3 to 4 स्टैंडर्ड नोटेशंस है, उनको यूज करके आप जो मर्जी नोटेशन यूज कर सकते हो, बट बी केयरफुल, एक डायग्राम में एक ही टाइप की रखनी है। अगर ये वाले यूज कर रहे हो तो कहीं पे 1 to n नहीं लिखोगे, अगर 1 to n राइट कर रहे हो तो ये नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप एरोज वाले यूज कर रहे हो तो ना ये वाले करोगे ना 1 to many लिखोगे। इन दिस केस नोटेशंस डिफरेंट हैं। कल हमने नोटेशंस कौन सी करी थी जिसमें हमारे पास डायरेक्शनल एरोज थे, ठीक है। फर्स्ट वाज दैट, दिस वन इज सेकंड, और थर्ड वन कौन सी है जिसमें मेंशन किया हुआ है 1 to n, 1 to many। जिस साइड पे 1 टाइप का है उस साइड पे हमने 1 लिख दिया, जिस साइड मैनी है उस साइड पे हमने n लिख दिया। अगर दोनों साइड मैनी टू मैनी होता तो आप यहाँ पे n लिख सकते थे और यहाँ पे m लिख सकते थे। एक ही डायग्राम में मिक्सिंग नहीं करनी, 3 टाइप्स हैं, तीनों में से किसी भी एक स्टैंडर्ड के साथ चले जाओ। अगर ये वाले यूज करनी है, लेबलिंग करनी है 1 to n वाली, तो आप यही यूज करोगे थ्रू आउट द होल डायग्राम। अगर ये वाली यूज करनी है तो थ्रू आउट द डायग्राम यही नोटेशन यूज करोगे, और अगर डायरेक्शनल एरोज वाले यूज करनी है तो थ्रू आउट द डायग्राम आप डायरेक्शनल एरोज ही यूज करोगे। तो इट्स अप टू यू कि कौन सी रखोगे, बट सारे डायग्राम में सेम यूज करोगे। So next we have relational data model. So relational data model is the primary data model, जो हमारा basic data model है, जो थ्रू वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, जिसमें हमारे पास टेबल्स एंड कॉलम्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास, वी आर हैविंग टेबल्स,
टेबल्स को व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशन मॉडल वी कॉल दिस टेबल्स एट रिलेशंस, हम टेबल्स को रिलेशंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है टपल्स। टपल्स क्या होती है? रो। तो अगर जो हमारी टेबल में रो होती है उसको हम रिलेशनल मॉडल में क्या बोलते हैं? टपल। एंड देन वी हैव relational instance. What is relational instance? We say a finite set of tuples in the relationship. Now if I say मेरे पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है, उसमें सारी ब्रांचेस का डाटा है, ठीक है, एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट आईटी स्टूडेंट्स डाटा, तो मेरा रिलेशन इंस्टेंस क्या हो गया? आईटी। if I am talking about mechanical at a time, it means my relational instance is mechanical. तो सेट ऑफ टपल्स जो किसी कंडीशन को मैच करके आपको रिट्रीव हो रही है उसको हम बोलते हैं रिलेशन इंस्टेंस, ठीक है। रिमेंबर रिलेशन इंस्टेंस नेवर हैव एनी डुप्लीकेट टपल, मींस उसमें डुप्लीकेट रोज नहीं होती, यूनिक रोज रिटर्न होती है। रिलेशन स्कीमा क्या होता है? रिलेशन स्कीमा डिस्क्राइब्स द रिलेशन नेम, जिसमें हमारे पास टेबल का नेम हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए और उसके नेम्स आ गए, उसको हम बोलते हैं रिलेशन स्कीमा। जो हमने डिस्कस भी किया था कि और सीक्वल मॉडल्स, जो हमारे सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, दे आर स्कीमा बेस्ड, और जो नो सीक्वल होते हैं दे आर स्कीमा लेस। तो रिलेशन स्कीमा क्या हो गया? अ स्कीमा विच कंसिस्ट ऑफ टपल्स, विच कंसिस्ट ऑफ टेबल्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, जिसमें हर एक रिलेशन का कोई नेम होगा और हर एक एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट मींस कॉलम, कॉलम का भी नेम होगा। रिलेशन की क्या होती है? कोई भी एट्रीब्यूट कोई पे आपने किसी भी रिकॉर्ड को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप किसी कॉलम पे कोई की लगाओगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन की। सो वी से ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट्स नोन एज अ रिलेशन की। तो अब रिलेशन की कैसे हो गया? सपोज मेरे पास एक टेबल है नेम्ड एज स्टूडेंट, इन द स्टूडेंट टेबल देयर इज अ एट्रीब्यूट नेम्ड एज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, student contact number and so on. So it means student contact number is related to student name, ठीक है, at the same time it is related to student roll number also. Then we can say कि student का जो roll name है वो आपका रोल नंबर से भी रिलेटेड है, सो दैट इज नोन एज रिलेशन की, के डिफरेंट जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सो दैट इज नोन एज रिलेशन की। और इसमें से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ a unique key that may be a primary key, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है relational model constants. So we are having three types of constants. One is key constant, another one is domain constants, then we have referential integrity constants. So basically there are the three constants. Constants क्या होते हैं? अगर किसी पे टेबल पे आपने कंफर्म करना है कि डाटा उसकी करेक्ट स्टेट में हो और उसके डाटा की वैलिडिटी को कंफर्म करना है, तो वी यूज सर्टेन कॉन्स्टेंट्स. So we say these are basically conditions, rules and regulations. So we say every relation has some conditions that must hold for it to be a valid relation. So these are called relational integrity constants. Now remember, in your final examination, 2 marks question generally comes on these constants. There may be question define integrity constants, define referential integrity constants, या you may be asked what are various relational constants likewise. तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स में, एंड दोस 2 मार्क्स क्वेश्चंस आर based on your relational model constant, just like weak entity and strong entity. So next we have relational model key constants. So here we say first category, so it says there must be at least one minimal set of attributes in the relation which can identify a tuple uniquely. अब what do you mean by minimal? Minimal subset क्या होता है? You have studied in discrete structures and mathematics. Can anyone tell me? Okay, let me tell you about this. So if we say about minimal subset, then it means कि मेरे पास 5 सेट में 5 एट्रीब्यूट्स आ गए A B C D E, ठीक है, आपने उसके कोई सबसेट बना लिए, तो जो भी आपने सबसेट बनाए हैं वो फर्दर डिवाइड ना हो, ठीक है, तो फर्दर वो डिविजिबल है, डिविजिबल होने के बाद उनकी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी अगर खत्म हो जाएगी तो उसको हम मिनिमल नहीं बोलेंगे.
अगर उसको हम तब तक रिड्यूस करते रहते हैं जब तक उसकी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमल। ये मिनिमल का आपको मैं क्लियर करूंगी इन टुमारोज लेक्चर, जिसमें हम वी विल फोकस ऑन कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज, कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करनी है रिलेशनल मॉडल में, दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर गेट एग्जामिनेशन एंड यूजीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है लाइक गेट का या यूजीसी नेट का, तो उसमें इस टॉपिक में से जो भी गेट क्वेश्चंस आते हैं दैट वी विल डू टुमारो, ठीक है। सो इसके उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मिनिमल सबसेट्स एंड कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी से मिनिमल प्रॉपर्टी जो इसमें होल्ड करती है, सो की कांस्टेंट क्या फोर्स करते हैं इन रिलेशन with the key attribute that no two tuples can have identical values, means two duplicate tuples नहीं होने चाहिए, और कोई भी की एट्रीब्यूट है उसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो की कॉन्स्टेंट्स आर रेफर टू एज एंटिटी कॉन्स्टेंट सिंपली। द मेन कॉन्स्टेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट व्हाट द मेन कॉन्स्टेंट्स, इट सेज कि जो उसके टाइप और रेंज को डिफाइन करते हैं कि किसी कॉलम की डाटा टाइप स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट है, जो भी है व्हाटएवर इज देयर, तो वो हमारे पास आ गए द मेन कांस्टेंट जो किसी की रेंज स्पेसिफाई करेंगे। Then referential integrity we have already discussed, so here comes the definition for it. It says कि referential integrity constants work on the concept of foreign keys. A foreign key is a key attribute of a relation that can be referred in other relation also. तो एक टेबल को दूसरे टेबल से जब रिलेट करने के लिए की यूज होती है, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। So next we have comparison of three models, that is hierarchical model, network model and relational model. So what was hierarchical model? In hierarchical model we have tree like structure. network model में क्या होता है, हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, और रिलेशन मॉडल में हमारे पास क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हायरार्किकल मॉडल में देखें तो डाटा हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर में या ट्री लाइक में रिप्रेजेंट होएगा, और उसमें हायरार्किकल में सिंगल पेरेंट होता है और सिंगल पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। बट ग्राफ लाइफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, वन चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट, और रिलेशनल में ये कोई पेरेंट चाइल्ड वाला ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता, बिकॉज द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन टेबल्स। तो जो हायरार्किकल मॉडल होता है रिप्रेजेंट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, और नेटवर्क रिप्रेजेंट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, and your relational model represents one to many, many to many, many to one. Any type of relationship is possible with your relational model. So if we talk about hierarchical, it is very difficult to access the data because we need help of pointers. Network में again pointers are needed, but जो data access करना easy होता है क्योंकि उसमें multiple connections होते हैं, ठीक है। आपके पास रिलेशनल मॉडल में बेस्ट है, डाटा को एक्सेस करना इजीएस्ट होता है। सो अगर हम हायरार्किकल मॉडल का देखें तो दिस इज लेस फ्लेक्सिबल क्योंकि होल डिपेंडेंसी इज ऑन सिंगल नोड। और अगर आपके पास नेटवर्क मॉडल होता है, इज इट फ्लेक्सिबल और लेस फ्लेक्सिबल और मोर फ्लेक्सिबल? हेलो, हाँ जी बच्चे, is it less flexible or more flexible? Am I audible? Ma'am, more flexible. Ma'am, more flexible. Why so? Why less flexible? Ma'am, more flexible actually. Because मैम क्योंकि हम वो जो रिलेशन होता है मैम मेनी टू मेनी होता है, और हम जल्दी उसको क्या बोल मतलब जल्दी हम एक्सेस कर पाते हैं। नाउ सी, अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, अगर मेरे पास हायरार्किकल हो, उसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आपने पेरेंट नोड को डिलीट कर दिया तो क्या होगा, उसके चाइल्ड नोड तो यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो दैट्स व्हाई वी कॉल लेस फ्लेक्सिबल। अगर नेटवर्क मॉडल है उसमें क्या होगा, आपके पास नेटवर्क मॉडल में अगर एक पेरेंट रिमूव भी कर देते हो तो हर एक चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं, तो आपका जो डाटा होएगा वो दूसरे पेरेंट से एक्सेस हो जाएगा, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बेटर होती है एज कंपेयर टू हायरार्किकल। सिमिलरली रिलेशनल मॉडल तो हम टेबुलर फॉर्म में होते हैं, सो दिस इज द इजीएस्ट वन।
नेक्स्ट लेटर सी कि हम ईआर डायग्राम जब बना लेते हैं उसके बाद उससे रिलेशनल स्कीमा में कैसे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ सपोज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी केयरफुली, क्योंकि हमारे पास जब भी डेटाबेस डेवलप करते हैं व्हाट विल वी डू, हम एक एंटिटी सेट ईआर डायग्राम बनाते हैं, ईआर डायग्राम से हम रिलेशनल मॉडल बनाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाते हैं तो इस केस में जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपकी होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं किसी स्कीमा में हो कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी सेक्शन, तो उस स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेक्शन में आपने क्या कर दिया कि इसकी फर्दर जब आप रिडक्शन करोगे, जो सॉरी कोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन अर केस, तो कोर्स क्या हो जाएगा, कोर्स टेबल बन जाएगा एक जिसमें 3 कॉलम्स बन जाएंगे, कोर्स आईडी, टाइटल एंड आपका जो थर्ड वन होएगा। नाउ सपोज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है स्टूडेंट, जिसमें आईडी एक रोल नंबर था, तो उस केस में क्या किया, एक स्टूडेंट नेम से टेबल बन गया जिसमें एक आईडी आ गया, उसका नेम आ गया और उसके टोटल क्रेडिट्स आ गए। ठीक है, तो सिमिलरली वीक एंटिटी में क्या होगा, बी केयरफुल बाय डिजाइनिंग वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी अगर हमारे पास है स्टूडेंट, इसकी डिपेंडेंसी किस पे थी, कोर्स पे, क्योंकि व्हाट इज अ वीक एंटिटी, वीक एंटिटी इज एन एंटिटी which is existent dependent on the strong entity. So what will happen, we say a weak entity set becomes a table, वो एक टेबल बन जाएगा that includes a column for the primary key of the identifying strong entity set. तो मेरे पास अगर सेक्शन के लिए मुझे एक टेबल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन के लिए सेक्शन नेम का टेबल बन गया, उसमें 3 एंटिटीज थी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ईयर, ये एज इट इज कॉलम्स बन जाएंगे। But at the same time, see what it is mentioning, it is saying it will include a column for the primary key of the identifying strong entity set. तो section के लिए identifying strong entity set कौन सा है, course, तो course की primary key कौन सी थी, course ID, तो section में जाके ये add हो जाएगी। Clear? So whenever we are designing any strong entity set relation, तो वो directly design होते हैं। We simply say जो एंटिटी का नेम होगा वो टेबल का नेम बन जाएगा, जो उसके एट्रीब्यूट्स थे वो हमारे टेबल के कॉलम्स बन जाएंगे। बट अगर वो वीक एंटिटी हो तो उस केस में वीक एंटिटी के जो नेम होगा वो टेबल का नेम बन जाएगा, जो उसके कॉलम्स होंगे वो एज इट इज कॉलम्स बन जाएंगे। एट द सेम टाइम उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा होगा, जो उसका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट था, जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा था, उसकी जो प्राइमरी की थी वो उसमें ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, और एनी डाउट? वीक एंड स्ट्रॉन्ग हाँ जी, एंटिटी, ये मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इन दोनों का टेबल तो डिफरेंट होगा ना? टेबल तो डिफरेंट बनेंगे बेटा, जितनी भी एंटिटीज होंगी उतने टेबल्स बनेंगे। फॉर द टाइमिंग ये सोच लो। और ये जो हाँ जी, और आईडी, नेम और ये जो आपका मतलब जो भी उसमें गिवन है वो सब तो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, कॉलम हो गए ना? हाँ, जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉलम बन जाएंगे। देखो अगर तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जैसे कोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो उसमें क्या आ गया, कोर्स नेम का टेबल बन गया, उसके कॉलम्स कौन से बन जाएंगे, कोर्स आईडी, टाइटल एंड क्रेडिट्स। ठीक है, क्लियर? बट अगर कोई वीक एंटिटी हो, तो सेक्शन क्या है, वीक एंटिटी है, तो वीक एंटिटी का जो नेम होगा वो हमारे पास टेबल का नेम आप यूज कर सकते हो और डिफरेंट नेम यूज कर सकते हो। नो हार्ड एंड फास्ट रूल के सेम नेम ही यूज करना है। ठीक है, तो आपने सेक्शन नेम का एक टेबल बना लिया, उसमें जो इसके 3 एट्रीब्यूट्स थे वो इसके कॉलम्स बन गए, ये 3 कॉलम्स आ गए, एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा, वो कौन सा कॉलम एक्स्ट्रा आएगा वीक एंटिटी के केस में, अब सेक्शन को कौन आइडेंटिफाई कर रहा था, कोर्स, क्योंकि जो सेक्शन है वो बिना कोर्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स वाई हमने क्या बोला था कि जो सेक्शन है ये एक वीक एंटिटी था। तो इस केस में जो इसकी डिपेंडेंसी किस पे थी, कोर्स पे, तो कोर्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट था। तो इस केस में जो इसकी प्राइमरी की होगी, तो वो जो प्राइमरी की होगी वो आपके वीक एंटिटी वाले टेबल में ऐड हो जाएगी एज अ कॉलम। तो यहाँ पे देखो सेक्शन एक टेबल बना, उसमें कोर्स आईडी जो इसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की थी वो ऐड हो गई, और जो सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ईयर, जो यहाँ पे 3 कॉलम्स थे ये एज इट इज ऐड हो गए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एज इट इज डिजाइन हो जाती है, वीक एंटिटी में जस्ट एक एडिशनल कॉलम ऐड होता है।
So nothing is complex over here. Simply जो वीक एंटिटी जिस किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट थी, उस स्ट्रॉन्ग एंटिटी के प्राइमरी की कॉलम को आपने वीक एंटिटी वाले टेबल में ऐड कर देना है एज अ कॉलम। अब कोर्स आईडी और स्टूडेंट, नाउ सपोज यहाँ पे मेरे पास होता है CSC 6th, उसके 2 सेक्शन है A एंड B। तो मेरे पास सेक्शन में क्या आ गया, CSC 6th A, दूसरी रो क्या आ गई, CSC 6th B। सपोज 3 सेक्शन होते तो CSC 6th सेक्शन कौन सा हो गया, C। सेमेस्टर और ईयर आपके एज इट इज चलते जाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी मैप अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी इनटू रिलेशनल टेबल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंटिटी सेट, अगर उसमें कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, एक एट्रीब्यूट जिसके फर्दर पार्ट्स हो। नाउ इन दिस केस नेम कैन बी डिवाइडेड एज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। एड्रेस में क्या हो सकता है, स्ट्रीट। स्ट्रीट में फर्दर क्या हो सकता है, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और अपार्टमेंट नंबर। अब एड्रेस में स्ट्रीट हो गया, एड्रेस में सिटी हो गया, एड्रेस में ही स्टेट हो गया, एंड जिप इज आल्सो देयर। तो इस केस में वी से नेम एड्रेस आर अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, और उसमें एड्रेस में जो एक स्ट्रीट एट्रीब्यूट है वो दोबारा से कॉम्पोजिट है, मींस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के अंदर एक और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है। अगर आपके पास इस टाइप की एक एंटिटी हो जिसमें हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको कैसे डिजाइन करोगे, तो उस केस में द सिंपलेस्ट वे इज जितने हमारे पास उस एट्रीब्यूट के सब एट्रीब्यूट्स होंगे उतने कॉलम्स बन जाएंगे। अगर मैं इस एंटिटी के लिए टेबल बनाऊं तो मेरे पास व्हाट विल बी द टेबल, सपोज टेबल इज इंस्ट्रक्टर, उसमें एक कॉलम हो गया आईडी। अब नेक्स्ट नेम के लिए 3 कॉलम्स बनेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस मेन एट्रीब्यूट, क्योंकि उसके जो सब पार्ट्स है आप कॉलम उनके लिए बनाओगे। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट दिस एक्सप्लेनेशन। इट सेज गिवन एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर विद कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट नेम, फाइन, with जिसके further component attributes are first name, last name and your middle name. So what will happen, we will get a table, the main इसका name है, it will be omitted, why so, otherwise ambiguity आ जाएगी, duplicity आ जाएगी। So what will we do, we say name first name could be represented as first name। तो means आप जरूरी नहीं है कि आपने नेम के फर्स्ट नेम के साथ नेम भी लगाना है, सिंप्लिसिटी लगा सकते हो, नो इश्यू। बट बेस्ट ऑप्शन क्या है, सिंपली फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम यूज कर लो, नेम साथ में राइट करने की नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, इंस्ट्रक्टर आईडी। इंस्ट्रक्टर आईडी का आपके पास ये टेबल बन जाएगा, इन नेम टेबल नेम बन गया इंस्ट्रक्टर, एक कॉलम कौन सा आ गया, आईडी, सेकंड कॉलम आपका यहाँ से आ गया फर्स्ट नेम, नेक्स्ट कॉलम मिडल नेम, मिडल इनिशियल, लास्ट नेम आपका आ गया लास्ट नेम। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, स्ट्रीट। अब एड्रेस के अंदर एड्रेस को स्किप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ मींस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के सब पार्ट पे आ गया स्ट्रीट। अब स्ट्रीट दोबारा से कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, तो आप इसके फर्दर इनसाइड जो एट्रीब्यूट्स है उन पे आ जाओ, दैट इज स्ट्रीट नंबर एंड स्ट्रीट नेम। तो टेबल में कॉलम कौन से आएंगे, स्ट्रीट नंबर एंड स्ट्रीट नेम। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, अपार्टमेंट नंबर, सो यू विल ऐड अपार्टमेंट नंबर। आफ्टर दैट ऐड सिटी, स्टेट एंड जिप। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया फोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एज, जो भी आपके कॉलम्स आ रहे हैं। सो दिस इज द वे, अगर आपके पास कोई एंटिटी सेट है, उस एंटिटी सेट के लिए आपने कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स अगर हैं तो उनको कैसे रिलेशनल टेबल में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऐसा एंटिटी सेट जिसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, नाउ कैन एनीवन टेल मी इसका क्या सोल्यूशन होगा अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे तो? हमने नॉर्मलाइजेशन। बेटा नॉर्मलाइजेशन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर स्टेज। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम से जब हम रिलेशनल मॉडल डिजाइन करेंगे डायरेक्टली, अब जब टेबल डिजाइन कर लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। ठीक है, वो बाद में रूल्स आपने अप्लाई करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक ईआर डायग्राम है, उस डायग्राम से आपने डिसाइड करना है कि आपके कौन से टेबल्स बनेंगे और उसके कौन से कॉलम बनेंगे। नाउ आई एम सेइंग, अगर आपके पास एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया फोन नंबर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फोन नंबर के लिए क्या सोल्यूशन है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक स्टूडेंट है,
उसके 2 फोन नंबर है उसके पास, उसने 2 कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए। तो अब आपके पास टेबल में ये तो होता नहीं कि कॉमा डाल के लिख दोगे 1 फोन नंबर कॉमा दूसरा फोन नंबर, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकती है? उसमें एक ऑप्शन आपके पास और हो सकती है, वो ऑप्शन क्या हो गई? सपोज मैंने आपके पास इस टाइप से कुछ बना लिया कि आई हैव डिजाइंड अ टेबल, जिसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं फोन 1 फोन 2 कर देती हूँ। मैंने क्या किया, फोन 1 एंड फोन 2 के रोल नंबर 1 का जब मैं डाटा एंटर कर रही हूँ, उसमें मेरे पास 2 कॉलम्स बना दिए। स्टूडेंट टेबल में मेरे पास कॉलम हो गए रोल नंबर, नेम और कॉन्टेक्ट नंबर 1, कॉन्टेक्ट नंबर 2, एक ये ऑप्शन हो गई। ठीक है, बट इस ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दिस इज पॉसिबल ऑप्शन, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की, जो हम डिस्कस करेंगे जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को में इस टाइप की डिपेंडेंसीज हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि दोनों फोन नंबर एक ही पर्सन के हैं और बात क्या हो रही है, 2 डिफरेंट चीजों की नहीं हो रही। ठीक है, एक ही चीज की बात हो रही है, दैट इज कॉन्टेक्ट नंबर। तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, तो उस पर्टिकुलर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक अलग टेबल बना दो। ठीक है, उसके लिए ऑप्शन क्या है, एक अलग टेबल बना दो। तो उस टेबल के आगे फर्दर टपल्स बना दो। नाउ सी द एग्जांपल, इट सेज इफ वी आर हैविंग अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट m of an entity where entity is e and it is separated by any schema em, this is simply a table का schema का नेम दे दिया em, जैसे डेटाबेस का नेम हो गया em। ठीक है, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइमरी की है हमारे पास किसी उस पे, और एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है m। ठीक है, तो इस केस में वी आर कंसीडरिंग फोन नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, दिस फोन नंबर बिलोंग्स टू इंस्ट्रक्टर। तो इस केस में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंस्ट्रक्टर फोन इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, फोन नंबर किसका था, इंस्ट्रक्टर का। तो मैंने एक एक टेबल डिजाइन कर दिया, उस टेबल का नेम दे दिया इंस्ट्रक्टर फोन। उसमें क्या डाल दिया मैंने, आईडी, आईडी के साथ क्या कर दिया, फोन नंबर। अब आईडी क्या है, ये यूनिक नहीं होगा, आईडी मींस इंस्ट्रक्टर का आईडी। नाउ सपोज मेरे पास मैं डाटा एंटर कर रही हूँ रोल नंबर 10 का, व्हाट विल हैपन, रोल नंबर 10 के 2 फोन नंबर है, तो मेरे पास स्टूडेंट फोन नाम से एक टेबल बन गया। तो स्टूडेंट टेबल का जो स्टूडेंट फोन का जो टेबल बनेगा, उसमें मेरे पास इसमें रोज कौन सी आएंगी, रोल नंबर 10, उसका फोन नंबर 1 2 3 4 5, फिर सेकंड रो आएगी रोल नंबर 10, उसका सेकंड फोन नंबर, सपोज उसके पास 3 फोन नंबर है तो एक और रो इंसर्ट हो जाएगी रोल नंबर 3, उसमें भी आ गया आईडी में रोल नंबर 10 और उसका फोन नंबर आ गया। तो अगर आपके पास ईआर डायग्राम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है, तो उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए आपने क्या करना है, एक अलग टेबल बना देना है। ठीक है, और उस टेबल में आपने ये चीज ऐड कर देनी है जो उसका प्राइमरी की कॉलम था। तो उस केस में इंस्ट्रक्टर कॉलम में हमारे पास इंस्ट्रक्टर आईडी प्राइमरी की कॉलम था, तो हमने क्या किया, एक आईडी नेम से कॉलम डिफाइन कर दिया इंस्ट्रक्टर फोन नंबर में और उसके फोन नंबर इंसर्ट कर दिया। नाउ सी द फुल एग्जांपल, इसमें वी आर सेइंग कि इंस्ट्रक्टर एंटिटी विद द प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है 22222 और उसके फोन नंबर हैं दिस इज वन फर्स्ट फोन, दिस इज सेकंड नंबर। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी मैप्ड टू 2 टपल्स। तो एक टपल आ गया आपका दिस वन, दूसरा टपल आ गया आपका दिस वन। अब इसमें जो उसका इंस्ट्रक्टर का आईडी था वो सेम रहेगा। सो दिस इज द ऑप्शन अगर आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाए। फिर आपके पास आ गया, हमारे पास 2 एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करोगे? तो अगर आपके पास इस टाइप का रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप के लिए एक अलग टेबल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जब ये अलग टेबल बनेगा, उस टेबल में हमारे पास क्या आ गया, नाउ हियर वी आर हैविंग इंस्ट्रक्टर टेबल, सॉरी इंस्ट्रक्टर एंटिटी और स्टूडेंट एंटिटी। अब इन दोनों एंटिटीज के लिए हम 2 टेबल पहले ही बना चुके हैं, तो अब एक तीसरा टेबल बनाएंगे, थर्ड टेबल विल बी देयर, दैट टेबल इज नोन एज एडवाइजर। इस टेबल के कॉलम्स कौन से होंगे, इसका आइडेंटिफायर और इसका आइडेंटिफायर, मीन इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की। तो रिलेशनशिप जब आपने डिफाइन करना है तो उस केस में जिन एंटिटीज को वो रिलेशनशिप
रिलेट कर रहा है उनके जो यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम्स होंगे, रिलेशनशिप हो तो उसके लिए कैसे टेबल बनेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता, मैंने एडवाइजर के साथ एक एट्रीब्यूट अटैच कर दिया, उस एट्रीब्यूट को मैंने नेम दे दिया, जैसे हमने जेस्टरडे डिस्कस किया था, द नेम इज डेट, कि वो इंस्ट्रक्टर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को किस दिन एडवाइस कर रहा है, तो क्या करोगे, कितने कॉलम्स हो जाएंगे इस टेबल में, 2 ही रहेंगे या ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, एनीवन, 2 हाउ रहेंगे। मेनी, मैम 2 रहेंगे। मैम 2 ही रहेंगे। नो, 2 रहेंगे। क्यों, फिर डेट कहाँ, फिर बेटा डेट कहाँ जाएगी, मैम वो जस्ट जो हमने रिलेशन पहले के लिए एग्जांपल, शायद। नो, हम बेटा फिर स्टोरी क्यों कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्टर इस स्टूडेंट को इस दिन एडवाइस कर रहा है, ठीक है, यही था ना। तो अगर मैंने ये टेबल में ये एडवाइजर के साथ जो डेट वाला यहाँ पे अटैच किया था, तो अगर मैं वो यहाँ से स्किप कर दूं तो मेरी तो इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, आई हैव स्टार्टेड लूजिंग द इंफॉर्मेशन। मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये वाला स्टूडेंट आईडी जो है ये इस वाले इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। इस टेबल से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वाला स्टूडेंट आईडी इस वाले नेक्स्ट डे किसी और इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हो, और मे बी ये जो वाला जो इंस्ट्रक्टर है ये किसी और डेट को किसी और स्टूडेंट से रिलेटेड हो, तो व्हाट विल हैपन, इट मींस